अब से कुछ देर में संबोधित करेंगे। Without any delay, may I now request Mr. Sanjeev Puri, President of the Confederation of Indian Industry, to please give the welcome remarks. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Shrimati Nirmala Sitharaman ji, Honorable Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Piyush Goyal ji, Honorable Minister for Commerce and Industry, my colleague from CII, Chandrajit, Excellencies, ladies and gentlemen. On behalf of CII and all of us present here, it is indeed a privilege to extend a very special welcome to our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Our warm welcome to the two Honorable Ministers who are custodians of the economy and industry. At the outset, I must congratulate Honorable Prime Minister for his exceptional leadership which has transformed India over the last decade, repositioning India globally, drawing great admiration. Under your strategic vision and dynamic leadership, India has emerged today as the fastest growing major economy in the world for 3 consecutive years. Sir, you have always appreciated the role of industry in India's progress and fostered trust and partnership between government, industry, and stakeholders. We are indeed honored that you have kindly agreed to address industry immediately after the major policy statement of the Union Budget, which also outlines the 9 key areas that would be pillars of India's march towards a Viksit status. So on behalf of the Indian industry and CII, I'd like to thank you for reflecting many of the industry suggestions in the Union Budget, including the employment-linked incentive. Today we have over 1,200 industry and other stakeholders joining us physically, and many more are watching at 160 plus locations within India. We have here our apex national and sectoral bodies. Besides this, additional centers at locations of our international partners in 25 plus countries and at 60 different locations are also joining us. Sir, you have been a tremendous source of inspiration for the industry, and this very strong participation today is reflective of this. The Union Budget reaffirms your emphasis on inclusive growth and has outlined a roadmap for Viksit Bharat. I once again congratulate you and your government for the astute handling of the economy and continued focus on reforms for greater investment, prosperity, and livelihood opportunity. So you have laid a strong foundation in Amrit Kaal. As we move towards Viksit Bharat, this is an exciting and unprecedented phase in India's economic history, and we at Indian Industry would like to work together with you on all fronts. Honorable Prime Minister, as you lead India on its journey towards Viksit Bharat, industry pledges to align with your vision for Viksit Bharat at 100 and stand together with you. We now look forward to your kind guidance for this partnership. Thank you, sir. Thank you, ladies and gentlemen. यहाँ उपस्थित इंडस्ट्री के सभी दिग्गज साथी, सीनियर डिप्लोमेट्स, बीसी के द्वारा देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ जुड़े हुए उद्योग और व्यापार जगत के सभी साथी, अगर युवाओं की सभा होती तो मैं शुरू करता, हाउ इज द जोश। लेकिन लगता है ये भी सही जगह है।
और जब मेरे देश में इस प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त किए व्यक्ति जोश से भरे हुए हो, तो मेरा देश कभी पीछे नहीं हट सकता। आपने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया। मैं सीआईआई का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे याद है पैंडेमिक के समय आप और हम चर्चा कर रहे थे। आप में से भी बहुत लोगों को याद होगा। और चर्चा के केंद्र में विषय रहता था गेटिंग ग्रोथ बैक। उसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहती थी। और तब मैंने आपसे कहा था कि भारत बहुत ही जल्द विकास के पथ पर दौड़ेगा। और आज भारत किस ऊंचाई पर है। आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत। ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है। ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। मैं जिस बिरादरी से आता हूं, उस बिरादरी की एक पहचान बन गई है कि चुनाव के पहले जो बातें करते हैं, चुनाव के बाद भुला देते हैं। लेकिन मैं उस बिरादरी में अपवाद हूं। और इसलिए मैं आपको याद कराता हूं कि मैंने कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा। भारत बहुत सधे हुए कदमों से लगातार आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब 2014 में आप सबने हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया, 14 में जब हमारी सरकार बनी, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि इकोनॉमी को वापस पटरी पर कैसे लाएं। 2014 के पहले की फ्रेजाइल 5 वाली स्थिति और लाखों करोड़ के घोटालों के बारे में यहां हर किसी को पता है। आप भारत को ग्लोबल प्लेयर बनाने वाले हैं। और ये मेरे लिए ग्लोबल प्लेयर शब्द भर नहीं है जी। मैं साफ मानता हूं मेरा देश ग्लोबल प्लेयर बनेगा। साथियों, हमारी सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। और इससे तो आप भी परिचित हैं।
हमारे लिए देश और देशवासियों की आकांक्षाएं, उनके एस्पिरेशंस, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं इंडस्ट्री को, भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित भारत बनाने का एक सशक्त माध्यम मानता हूं। मैं आप जैसे साथियों को, वेल्थ क्रिएटर्स को भारत की ग्रोथ स्टोरी का प्रमुख ड्राइविंग फोर्स मानता हूं। और मैं लाल किले से भी गर्व के साथ इसका जिक्र करने में संकोच नहीं करता हूं। साथियों, पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है, आप सब पर है। आज भारत की नीति, भारत की निष्ठा, भारत का निश्चय, भारत के निर्णय और भारत में हो रहा निवेश पूरे विश्व की प्रगति का आधार बन रहा है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहां आने के लिए लालायित है। वर्ल्ड लीडर्स भारत को लेकर पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। ये भारत की इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन मौका है, गोल्डन चांस है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। मैंने नीति आयोग की बैठक में भी, अभी जब मुख्यमंत्रियों से मीटिंग हुई तो मैंने उनसे कहा है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली चार्टर तैयार करे हर राज्य। राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश का एक भी राज्य पीछे रह जाए। निवेश के लिए नीतियों में और स्पष्टता लाएं, बेहतर माहौल बनाएं, गुड गवर्नेंस का एहसास हर कदम पर होना चाहिए ताकि निवेशक देश के हर राज्य में जा सके। साथियों, मैं गत 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर और विश्व की स्थितियों को बारीकी से जानने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे, वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। हम गरीब देश के रूप में आजाद हुए थे, हम लूट चुके थे। दुनिया में जो कोई भी लूटना चाहता था लूट रहा था, आखिरी मोमेंट तक लूटे गए थे। और फिर हमने हमारी यात्रा शुरू की थी। 100 साल के भीतर भीतर सारे अवरोधों को पार करते हुए, संकल्पों को चरितार्थ करते हुए शताब्दी विकसित भारत की मना करके ही रहेंगे। हम रहे न रहे, हमारी पीढ़ियां आने वाली विकसित भारत को गर्व से जिए, ये सपने लेकर चलना है। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़े, अपने भारत को विकसित बनाएं और इस संकल्प को सिद्धि पर ले जाने के लिए जीवन का अपने पास ईश्वर ने जो भी दिया है उसका उत्तम से उत्तम हम समाज को, देश को फिर से अर्पित करें। इसी एक भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your leadership and your guidance.
Ladies and gentlemen, kindly remain in your places until the Prime Minister and other dignitaries have left the hall. ವಿಶ್ವ ಪ್ಲಸ್ ಜನಹಿತಕ್ಕಿದು ಜ್ಞಾನದ ಜಾಲ.